ओके सो लेट वी स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इट इज़ द मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ एवोगैड्रो नंबर। दीज आर द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर, जिसके अंदर हम देखेंगे एक तो आपको पता है कि एवोगैड्रोस नंबर हैं क्या। जो हमारे पास 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं किसी भी चीज़ के अंदर, दैट इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर। इसको हम डिनोट कैपिटल एन ए से करते हैं। In this lecture, we will try to derive a derivation for determination of Avogadro number. इसको डेरिवेशन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें रिक्वायरमेंट होगी बैरोमीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड बैरोमीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला की। सो इन दिस लेक्चर firstly we cover out the first one content about barometric distribution law, and then we talk about its formula, how we got this formula, and by using barometric law we have to determine the Avogadro number. ठीक है, तो ये हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द बैरोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एंड फॉर्मूला। Actually, the barometric distribution, the word barometric, always when there is a term barometric, always there is a term pressure comes in mind. ठीक है, तो ये जो हमारे पास लॉ है, ये जो फॉर्मूला है, ये किसको डील करता है? बेसिकली ये डील करेगा प्रेशर को। प्रेशर को अब डील कर रहा है, लेकिन उसको प्रेशर के साथ किस चीज को कंपेयर कर रहा है? दैट इज द हाइट एंड एल्टीट्यूड, जो उसकी हाइट है। और what is the relation between height and pressure? As you know that as we go to the higher area, जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं वहां पे प्रेशर क्या होता है? इट बिकम लो। So according to barometric law, as it deals with the attitude and height for liquid and solid, the effect of pressure is not dominant, but in the case of gases, changing height, temperature, pressure has effect. This is in the case of solid and liquid, we don't have a much effect, but if we talk about the gases, as we go to the height, the pressure will be low. So pressure has a major effect according to the height. So according to barometric distribution, the change of the pressure by changing the height can be described as P over P naught. P is the pressure at the time, and where P naught is the standard pressure, is equal to E exponential power minus mgh over RT. And in this formula, you can see m is the mass, g is the gravitational effect, the gravitational acceleration, h is the height, r is the general gas constant, and t is the absolute temperature. So firstly, we have to describe this one formula कि ये formula generate कैसे हुआ है, and then by using this one formula we have to derive a relation for Avogadro number. सबसे पहले जी डेरिवेशन ऑफ द बैरोमेट्रिक्स लॉ फार्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस वन फार्मूला, हाउ वी ड्राइव इट? फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू नो अबाउट प्रेशर. व्हाट इज प्रेशर? Pressure is defined as the force per unit area. As you can see at the screen, pressure is equal to F by A. It means that force per unit area. And if we talk about the force, what is the force? Force is also denoted by mg. M is the mass and g is the gravitational acceleration. So put the value of the force and pressure formula. You got P is equal to mg over A. And if we talk about change in pressure, then you put here D. ठीक है, D क्या रिप्रेजेंट करता है? चेंज. And minus sign is here. That is shown that as you go to the height, the pressure is decreases. That's why there is a negative sign. And so minus dp, the change in pressure that goes to height, then there is the low pressure. Change in pressure is equal to mg over A. ठीक है, so suppose this is the equation 1. Equation 1 में जो minus dp है, it is the change in pressure. Why the minus sign is here? Because as you go to the height, the pressure is decreases. That's why we put here negative. And it will is equal to force per unit area, and force is equal to mg. So we write here mg divided by A, that is the area. Suppose this is equation 1.
Now, as we know that what is the density? Density is basically the mass per unit volume, and if we separate out the mass, what happen here? The volume that is divided on the mass, it will go to the density. So we got this one formula: mass is equal to D into V. Now D, what is D? D is the density. And what is the representation of density? In physical chemistry, we just represent the density by rho. So we just put here the rho. And what is the V? What is basically V? V is basically the volume. Volume, and what is volume? As you know that if you have to consider the volume, you have taken the three sides: length, width, and height. So this is ADH. What is the ADH? A is the basically, H is the height, D is the width, and A is the length. So by multiplying all these three factors, you got the volume. In this equation, at the place of density, we just put here the rho, and at the place of volume, we just put here the value of the volume. How we got the value of the volume? You know volume. If we talk about the volume, what is volume? How you take the volume? You have to consider all the three sides of a container or etc. For example, if there is a length, width, and height, all of three sides are multiplied to each other, they got the volume. So these are the standard three sides for the volume. We just put here the value. अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने mass की value find out कर लिया. Now what we do, here is the mass, this is the value of mass, and you have to put in equation number 1 at place of here. ठीक है, इस मैथ के अंदर ये जो हमने एक मैथ की वैल्यू ड्राइव की है बाय यूजिंग द डेंसिटी एंड वॉल्यूम, आपने यहाँ पे पुट कर ली. आफ्टर पुटिंग द वैल्यू हेयर द सम सिंप्लीफिकेशन, ए से कट जाएगा. ठीक है, सो माइनस डी पी इज इक्वल टू रो इंटू डी एच जी. Okay, this is the a change in pressure. It will relate it to the density, into height, gravitational expression, and as well as the width. Now, according to the kinetic theory of the gases, what is kinetic theory of gases? It is the PV is equal to 1 by 3 mnc square, and we can also write here PV is equal to 2 by 3 RT. This is also a form of kinetic theory of gases, and originally kinetic of theory of gases, its formula is PV is equal to 1 by 3 mnc square, and by using this one equation, you can convert this equation into this form. How you this one? We already this equation, just we have a review. You have to divide and multiply kinetic gas in equation with 2 by 2. ठीक है, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर देंगे, एंड आफ्टर देयर इज सम सिंप्लीफिकेशन. ये देखें, ये जो 2 है, इससे हम इसने इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और इस 2 से बेसिकली हमने इस इक्वेशन को डिवाइड किया. बट वी हैव टू अरेंज द इक्वेशन. थोड़ी सी अरेंजमेंट किया है. इसमें जो 1 by 3 था, 3 को हमने ब्रैकेट से बाहर लेके जो यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा था, उसको जस्ट सिंपली अंदर पुट कर दिया. इसकी वजह क्या है? इसको करने का एक पर्पस था. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज द हाफ एम वी स्क्वायर और सी स्क्वायर. सी इज द वेलोसिटी. दैट्स व्हाई you have to put here a value of kinetic energy. ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हाफ एम सी स्क्वायर होती है. सिमिलरली हमने यहाँ पे पुट कर ली एंड से दिस इज इक्वेशन 2. इस इक्वेशन को हम फर्दर भी थोड़ा सा एलेबोरेट कर लेते हैं. यहाँ पे हमने पी वी को आर टी के इक्वल क्यों लिखा है? अकॉर्डिंग टू जर्नल गैस इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी. ठीक है, और सपोज करें कि n आपके पास अगर 1 मोल है, अगर आप 1 मोल के लिए लिखेंगे तो हमारे पास आ जाता है PV is equal to RT. ठीक है, so you can write here RT is equal to 2 by 3 into KE. इस इक्वेशन को अगर हम फर्दर थोड़ा सा सॉल्व करें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू RT 3 by 2. सिंपली रीअरेंज किया, 3 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, जो 2 डिवाइड हो रहा था इधर जाके नीचे, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा था नीचे जाके डिवाइड हो गया.
सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। और ये हमें क्या बताती है, यहाँ पे ये फार्मूला हमें ये भी बताता है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। 3/2 भी हमारे पास कांस्टेंट है, आर तो पहले ही जनरल गैस कांस्टेंट है। सो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यहाँ से एक वैल्यू हमें, जो हमने पहले पिछले लेक्चर्स में काइनेटिक इंटरप्रिटेशन की थी टेम्परेचर पे, वहां पे भी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व की थी और आज भी हमने इसको दोबारा से एक इसका रिव्यू लिया। इन टुडे लेक्चर व्हाट वी नो, वी नीड दिस वन इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 2 क्या है, पी वी इज इक्वल टू 2/3 ई के। ये कैसे इक्वेशन आई है ये आपने देख लिया है। नाउ यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन 2 एंड सॉल्व द बैरोमेट्रिक formula. Okay, next is, as you know that what is the density, density is rho and rho is equal to mass over volume. ठीक है, अगर आपने वॉल्यूम को सेपरेट करना है, you can write here v is equal to m over rho. Simply rearrange इक्वेशन की है। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है, वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट की है। इक्वेशन नंबर 2 दैट इज द पीवी, यहाँ पे v की वैल्यू पुट की है। और v की वैल्यू कैसे लाई है, बाय यूजिंग द डेंसिटी फॉर्मूला। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v दैट इज द m ओवर रो, m ओवर रो आ गया। ओके, देन व्हाट वी डू, यू हैव टू रिवर्स द इक्वेशन। ठीक है, ये सिर्फ इक्वेशन को रिवर्स किया गया है। देखें हमारे पास था pm ओवर रो, यू हैव टू राइट रो ओवर pm। मैथमेटिक का रूल है, इक्वेशन को अगर हम रिवर्स करके लिख सकते हैं तो जो चीज मल्टीप्लाई होती है वो डिवाइड में चली जाती है, जो डिवीजन में है वो क्या हो रही है, उसकी सिंपली मल्टीप्लिकेशन हो रही है। सो सिंपली आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम इन इक्वेशन 2, व्हाट यू डू, यू हैव टू रिवर्स द इक्वेशन and after reversing the equation, you know p over m over rho, rho over pm, 2 over 3, so it will be 3/2. Here the t will be multiplied by 2/3. Here the ek is the divide. So after reversing the equation, you have to separate out the density. डेंसिटी को निकालने के लिए सिंपली जो pm यानी कि प्रेशर और जो मास डेंसिटी के साथ डिवाइड हो रहा था, ये उधर जाके इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो गया एंड यू गॉट द इक्वेशन नंबर 3. Now this equation number 3, if you search about equation number 3, it is basically value of the density. Density is equal to 3/2 ek kinetic energy into pm pressure and mass. So you have to put this equation number 3 in equation number 1. इक्वेशन नंबर हमारे 1 क्या हमारे पास है, बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है चेंज इन प्रेशर, नॉट दिस वन, चेंज इन प्रेशर is equal to mg over a, and you have to put value of this one, you have to put here this one equation. ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे लें। आई जस्ट रीसेट इट, आर यू ठीक है, फिलहाल इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें क्योंकि आगे सारी इक्वेशन डिस्टर्ब होंगी। ओके, देयर इज द माइनस डी पी इज इक्वल टू रो इंटू डी जी एच। हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे रो की वैल्यू फाइंड आउट की है, इस रो की, एंड व्हाट इज रो, इट इज द डेंसिटी। सो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। आपने इस डेंसिटी की वैल्यू अब आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की है। ठीक है, देखें वहां पे हमारे पास क्या था, d माइनस डी पी चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू रो डी जी एच, जैसे इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसके अंदर हमने सिर्फ रो की जो वैल्यू पुट की है उसको डाला है, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यू देयर इज द रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन। सो दिस वन p विल गोज टू हियर, जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। ठीक है, और वहां पे जो बाकी तमाम इक्वेशन को एज सच लिख दिया। सो हियर डोंट बी कंफ्यूज योरसेल्फ, यहाँ पे हमने दिस वन इक्वेशन, ठीक है, ये जो इक्वेशन माइनस डी पी रो इंटू डी जी एच, हियर दिस इज द इक्वेशन 1, and this equation 1 we have to put the value in equation 1 by comparing the value of density, and you got this one equation. अब आपने जब इसके अंदर रो की वैल्यू पुट कर लिया है, नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट द इक्वेशन। ठीक है, इंटीग्रेट इक्वेशन को हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और आपको पता है कि जब भी इंटीग्रेशन करते हैं
तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम एक लिमिट लेते हैं, ठीक है। तो लिमिट लिया है, यहाँ पे हमारे पास दो फैक्टर हैं, एक हमारे पास प्रेशर का फैक्टर है, ठीक है, तो और दूसरा हमारे पास हाइट का फैक्टर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो लिमिट लगानी है प्रेशर की, वो पी से पी नॉट है, और एच है वो 0 से एच है। सिमिलरली आप ये देखें, ये जो हमने रीअरेंज इक्वेशन किया है, इसको करने का पर्पज ये था ताकि हम दोनों फैक्टर को सेपरेट आउट कर लें। यहाँ पे प्रेशर का फैक्टर सेपरेट कर लिया है, और यहाँ पे हाइट, ठीक है, हाइट का फैक्टर सेपरेट कर लिया है। इन दोनों पे इंटीग्रेशन लगाई है, इंटीग्रेशन लिमिट में लगाते हैं, लोअर लिमिट को हम नीचे लिखते हैं और अपर को हम ऊपर लिखते हैं, इंटीग्रेशन का साइन है। सिमिलरली ये भी यहाँ पे लिमिट लगा दी है इंटीग्रेशन की, ठीक है। इस इक्वेशन के अंदर इंटीग्रेशन लगाने के बाद इक्वेशन है इंटीग्रेशन पी 0 पी और 0 से एच, लिमिट लग गई है, हाइट की भी लिमिट लग गई है और प्रेशर की भी लिमिट लग गई है, यानी कि प्रेशर इन बिटवीन है, हाइट भी 0 से एच के दरमियान है, इसी तरह जो प्रेशर है वो भी 0 से लेके पी के दरमियान है। इक्वेशन में हमने इंटीग्रेशन पुट करके इसको जब फर्दर सॉल्व किया, अब यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन को हम फर्दर सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व आउट करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करने के लिए मैथमेटिक्स रूल के अकॉर्डिंग लॉग लेने पड़ते हैं, ठीक है, लॉग नेचुरल। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 3m यानी कि मैस, एक पर्टिकुलर गैस का मैस भी कांस्टेंट होता है, मैस 3/2e के, ये तमाम चीजें हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, जहाँ पे हमारे पास जो g है वो भी कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की वैल्यूज को हम लोगों ने अलग लिख लिया, सिर्फ dh, यही इक्वेशन है, सिर्फ इसको फर्दर जो है इंटीग्रेशन h के ऊपर पुट किया है, क्योंकि इंटीग्रेशन ओरिजिनली भी सिर्फ हाइट के ऊपर ही है, और दूसरी साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे किसके ऊपर है, प्रेशर के ऊपर है। ओके, नाउ व्हाट यू डू, यू हैव टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हमें लॉग लेना पड़ता है, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं कि लॉग नेचुरल पी माइनस लॉग नेचुरल पी नॉट इंटीग्रेशन का दिस नॉट इज दिस वन, जो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन है इसको हम लोगों ने सॉल्व आउट करने के लिए, आगे फर्दर इंटीग्रेशन को अगर आपने सॉल्व आउट करना है तो आपको उसका लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। माइनस साइन वैसे है, लॉग नेचुरल पी माइनस लॉग नेचुरल पी नॉट इज इक्वल टू 3mg ओवर, और इसका जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, h माइनस 0, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या हमने किया है कि p माइनस पी नॉट, सिमिलरली यहाँ पे जो हमने किया है h माइनस एच नॉट है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, नेगेटिव साइन को रिमूव करने के लिए वैल्यू रिवर्स हो जाएंगी, तो लॉग नेचुरल हो जाएगा पी नॉट ओवर पी, ठीक है, और ये किसके इक्वल होगा, 3mgh ओवर 2k। तो सिंपली ये इक्वेशन 4 है, और ये इक्वेशन 4 कैसे आई है, जो इंटीग्रेशन हमने लिया है उस इंटीग्रेशन को सॉल्व आउट करके यहाँ पे हमने लिया है। इंटीग्रेशन का यहाँ पे लेने का पर्पस क्या होता है, बेसिकली ये डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग किसी भी चीज को समराइज करने के लिए, किसी भी चीज को आपस में सम अप करने के लिए जो मेथड अप्लाई करते हैं वो इंटीग्रेशन का होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन लेने के बाद आप देखें कि आपको एग्जैक्टली एक वैल्यू मिल गई है किसकी, यहाँ पे प्रेशर की, और हमारे पास उसका कंपैरिजन किसके साथ था, हाइट की। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन 4 एंड दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द बैरोमीट्रिक फार्मूला। अगर आप बैरोमीट्रिक आपको याद हो तो वो हमारे पास था कि पी नॉट ओवर जो पी है आपके पास वो किसके इक्वल है, एक्सपोनेंशियल पावर माइनस 3mgh ओवर ई के, यहाँ पे उसकी जगह आर टी की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। हमने यहाँ पे एक पीछे बात ये भी की थी कि आपके पास जो आर टी है वो किसके इक्वल है, आर टी इज इक्वल है 3/2 ई के। तो इस इक्वेशन में अगर आप आर टी की वैल्यू पुट कर लोगे तो आपके पास अगेन वही आ जाएगा जो हम शुरू में बैरोमीट्रिक लॉ की एक इक्वेशन पढ़ के आए हैं, mgh ओवर आर टी, ठीक है। अब इसके अंदर ई एक्सपोनेंशियल पावर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लॉग नेचुरल है, लॉग नेचुरल को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसकी वैल्यू को इस तरह लिखना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन नंबर 4 है बेसिकली ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये बैरोमेट्रिक फॉर्मूले को प्रेजेंट कर रही है। अब इस बैरोमेट्रिक फार्मूले को लेके हमने फर्दर चलना है और कैलकुलेट करते हैं एवोगैड्रो नंबर को।
यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको पता है कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। जैसे जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बढ़ेंगे तो प्रेशर क्या होगा, वो भी इंक्रीज होता है। ठीक है, तो इस एक अगर हमारे पास प्रेशर और नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल है, मोल है, वो इक्वल है, तो जो इक्वेशन नंबर 4 है उसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि लॉग नेचर एन नॉट ओवर एन इज इक्वल टू 3 mgh ओवर 2 E K। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली हम यह बात कर रहे हैं कि जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है एन के, और एन क्या है, इट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल या मोल कह लें आप। तो यहाँ पे हमने सिंपली जो प्रेशर है उसको इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में लिख के एक इक्वेशन बनाई है, और ये इक्वेशन नंबर 5 है। नाउ यू हैव टू यूज दिस इक्वेशन 5 that will obtain from barometric formula, and by using equation number 5 we have to calculate the Avogadro number। अच्छा जी, इसके लिए हमने क्या किया, ओके, देयर इज अ साइंटिस्ट दैट इज Perron। अकॉर्डिंग टू Perron there is mg is equal to na mg over 1 minus rho prime over rho। ये एक फार्मूला है, पेरन एक साइंटिस्ट है और उन्होंने इस फार्मूले को ड्राइव किया था। वी हैव टू यूज पेरन्स फार्मूला। हमारे सिलेबस में इसकी डेरिवेशन नहीं है, सो देयर इज नो नीड, दिस इज द पेरन फार्मूला। ठीक है, इस पेरन फार्मूले को हमने लेना है, और इसको जब हम बैरोमीट्रिक फार्मूले के अंदर जो इन टर्म्स बैरोमीट्रिक फार्मूला इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के अंदर जब हम इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आगे फिर हमारे पास है एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे ये जो mg है, इट इज नॉट द मैग्नीशियम, इट इज द मैस इनटू ग्रेविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली मैस और ग्रेविटी की एक वैल्यू दी है पेरन ने, और हमने क्या किया है, ये जो हमारे पास मैस और ग्रेविटी की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, इसको हम लोगों ने इक्वेशन नंबर 5 के अंदर पुट किया है। कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास 3 mgh ओवर 2 E K है। यहाँ पे हमने पेरन की वैल्यू को पुट किया। ओके, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू दिस वन। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, E K की वैल्यू, ये देखें यहाँ पे हमारे पास है 2/3 E K की वैल्यू अभी हम पीछे पढ़ के भी आए हैं कि E K क्या किसकी वैल्यू इक्वल है, 3RT/3/2। ये वाली वैल्यू कैसे कैलकुलेट आई है, ये एट द स्टार्ट हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था। मैं आपको दिखा भी देती हूँ दिस वन, ये देखें, जब हमने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को डिस्क्राइब किया था और हमें वहां पे इक्वेशन नंबर 2 की रिक्वायरमेंट थी, बट हमने उसको फर्दर थोड़ा सा क्लैरिफाई इसीलिए किया था ताकि हमने यहाँ पे ही ई के इज इक्वल टू 3/RT/3/2। So this one value now you have to put in this one formula। अगर हम ये वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास ये बैरोमेट्रिक लॉ का जो एक्सप्रेशन जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं वो बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम बैरोमेट्रिक लॉ को इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया है, ओके, उसको करने के बाद उसके हमने अंदर पेरन की वैल्यू पुट की है, पेरन फार्मूला की, एंड देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ ई के, और ई के की वैल्यू क्या थी, RT/3/2। ठीक है, नाउ यू हैव टू रीअरेंज द इक्वेशन। तो यहाँ पे 3/2 बेसिकली डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, डिवाइड हो रहे हैं, इसको अगर आपने रीअरेंज करना है तो क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो ये वैल्यू रिवर्स हो जाएगी, यानी कि 3/2 था तो 2/3 हो जाएगा। At the lower equation, you can see here log nature n naught over n is equal to 2/3। अब ये 2/3 क्या है, बेसिकली दिस इज रिवर्स फॉर्म, ये ऊपर अब मल्टीप्लाई हो रहा है, बाकी एज सच जो वैल्यू है वो आपकी बिल्कुल कांस्टेंट चल रही है। यहाँ पे अब इसको फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें, ये देखें 3 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद after simplification you got equation that is log nature n naught n0 or n naught over n is equal to h over rt na mgh rho minus rho prime p। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये रो माइनस रो प्राइम पी कैसे आया है, इसको भी थोड़ा सा आप यहाँ से क्लैरिफाई कर सकते हैं। देखिए हमारे पास है 1 माइनस रो प्राइम ओवर पी रो। ठीक है, इसका हम लोगों ने ले लिया एलसीएम।
इसका एलसीएम लेने के बाद क्या हो गया, रो माइनस रो पी। तो इसको इन टर्म हम लोग यूं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो ये रो वाला फैक्टर है डेंसिटी वाला, इसका एलसीएम लिया गया है, ठीक है। और एलसीएम लेने के बाद और फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने के बाद फाइनली वी गॉट एन इक्वेशन, वी से दिस इज इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। इक्वेशन नंबर 6 हमारे पास आ चुकी है। नाउ व्हाट वी डू, ओके। अब हम लोग यहाँ पे शुरू में हमने एक बात कर दी थी, बात हमने की थी कि गैस के मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। गैस है तो वो ही प्रेशर को अफेक्ट करता है, अगर प्रेशर है तो उसके ही वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के। अब हम यहाँ पे एक बात ये कंसीडर करते हैं कि जो हमारे पास मॉलिक्यूल हैं गैस के, उनका जो रेडियस है ना वो स्फेरिकल है। स्फेरिकल मतलब उनका बिल्कुल राउंड है। अब अगर उनका रेडियस स्फेरिकल है तो वॉल्यूम की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, ये कांस्टेंट होती है हमारे पास, इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये वॉल्यूम की वैल्यू है और हमें डेंसिटी का भी फॉर्मूला पता है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू m/v, ठीक है। यहाँ से अगेन हम लोगों को क्या चाहिए, हम लोगों ने यहाँ से मास को सेपरेट आउट करना है। जब हमने मास को सेपरेट आउट किया, इट विल बिकम इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ये हमारे पास एक रीअरेंज इक्वेशन आ गई है, इसके अंदर हम लोगों ने वॉल्यूम की वैल्यू पुट करके ये इक्वेशन ड्राइव किया है। और वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है वॉल्यूम की। कब, अगर आपके जो गैस के मॉलिक्यूल का रेडियस क्या है, स्फेरिकल है। सिंपली हमने ये वैल्यू पुट करके m की वैल्यू बना ली है। नेक्स्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो m की वैल्यू आप लोगों ने फाइंड आउट की है, यू हैव टू पुट इन इक्वेशन नंबर 6 हियर, दिस इज द m। यहाँ पे हम ये जब इक्वेशन m की वैल्यू पुट करेंगे, सो क्या होगा, m हमारे पास क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। सारी इक्वेशन एज सच है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ये वाला फैक्टर अगर आप देखें, दिस इज द m, नॉट दिस इज इंक्लूडिंग दिस वन। मास इनटू डेंसिटी है ना, ठीक है। ये मास है, मास इनटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है। तो 4/3 ये हमारे पास वॉल्यूम है, ये डेंसिटी एज सच है। ओके जी, इसको फर्दर थोड़ा सा अगर हमने क्लैरिफाई किया है, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चंस को क्या किया है। ये वाला जो पोर्शन है एज सच ऐसे ही है। यहाँ पे हमारे पास Na था और RT, इसको इक्वेशन के उस साइड ले गए हैं। उस साइड जाने के बाद देखें RT इधर डिवाइड हो रहा है, इक्वेशन के उस साइड ऊपर चला जाएगा, और Na जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वेशन के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो हियर दिस इज द वैल्यू RT over Na into log nature n naught over n, and it will is equal to 4/3 pi r cube, ठीक है। और इसके बाद जो ये GH है, GH ऐसा लिखा रहेगा। देन हेयर इज द P, जो हम ऑलरेडी हम लोगों ने मैथ्स का की वैल्यू से जो P आया था, और एसेट फॉर्मूला ऐसा ही रहेगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन में एक रो से कट सकता है, ठीक है, कट गया। ओके, नाउ RT over Na log nature n naught over n 4/3 पाई r क्यूब GH ऐसा रह गया, रो कट गया, और P रो माइनस रो प्राइम, दिस इज द इक्वेशन। Now what you do, you have to further rearrange the equation। रीअरेंज इक्वेशन में आपने क्या किया, ये देखें हमारे पास ना RT over Na के साथ ये लॉग नेचर वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है। इसको आपने सिंपली इक्वेशन के उस साइड लेके जाना है, तो वो क्या हो जाएगी, ये देखें यहाँ पे आपको डिवीजन का साइन नजर आ रहा है, डिवाइड हो जाएगी। लॉग नेचर की वैल्यू इक्वेशन की उस साइड जाके सिंपली डिवाइड हो गई है एज सच। बाकी जो इक्वेशन है वो वैसे ही रही है, उसको हमने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। okay, now this one the rearranged equation, and after this you have to reverse the equation। अच्छा जी, रिवर्स द इक्वेशन का क्या मतलब है, पहले भी हम ये बात करें कि बिल्कुल रिवर्स का मतलब है कि जो चीज डिवाइड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई हो रही थी वो डिवाइड हो जाएगी। तो देखें RT ओवर Na का रिवर्स क्या होगा, Na ओवर RT। सिमिलरली आप अगर इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे आपके पास लॉग नेचुरल डिवाइड में था, और ये जो रो वाली टर्म है ये ऊपर थी न्यूमिनेटर में। आफ्टर रिवर्सिफिकेशन क्या होगा, लॉग नेचुरल ऊपर चला जाएगा, ठीक है, और 4/3 नीचे आ जाएगा, एज यू कैन सी हियर दिस वन।
नाउ फर्दर यू हैव टू रीअरेंज द इक्वेशन। बेसिकली हमारा पर्पस Na को लाना है, Na इज द एवोगैड्रो नंबर। तो RT जो इसके नीचे मल्टीप्लाई हो रहे, डिवाइड हो रहे थे, सॉरी, इक्वेशन के उस साइड जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन। इसको अगर आप फर्दर थोड़ा क्लैरिफाई लिख के दें तो ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम लोग यूं भी लिख सकते हैं। सो Na is, what is Na? It is the Avogadro number and it will is equal to, you have to calculate, you can calculate log natural n naught over n into 3 RT over 4 pi r cube into G8 into rho minus rho prime. So this is the formula. By using this one formula, you have to calculate the Avogadro number of the gas molecule. इन शॉर्ट ये तो हमें पता है कि एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू कितनी है, कि 6.02 × 10⁻23, ये तो हमें पता है। लेकिन ये आई कैसे थी ये हमें तो पता चल चुका, हम उसको ही लेके चल रहे हैं, आज तक चलते आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करनी पड़े तो यू हैव टू यूजिंग दिस वन फार्मूला। और ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सा फार्मूला, इट नॉट इजीली सिंपल वन, लेकिन इसको करने के बाद हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा यही टॉपिक था कि यू हैव टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट द एवोगैड्रो नंबर। सो एवोगैड्रो नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले बैरोमेट्रिक डेरिवेशन की जरूरत पड़ी है, बैरोमेट्रिक फार्मूला की। एंड व्हाट इज बैरोमेट्रिक फार्मूला? यू कैन सी हियर दैट इज द चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू ई एक्सपेंशनल पावर mgh ओवर RT। ये फार्मूला ड्राइव करने के लिए पहले हमने एक रिलेशन ड्राइव किया एंड देन आफ्टर दैट उसके बाद हम लोगों ने उसको प्रेशर को सपोज किया कि इट विल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल आर द पार्टिकल। उसके बाद हमने उसके अंदर फर्दर जो डेरिवेशन करके एक फाइनल एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस वन फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द Na। व्हाट इज Na? इट इज द एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। और यहाँ तक ही था, आप लोगों को ये डेरिवेशन आ सकती है, यू हैव टू डू, सिंपल डेरिवेशन है, इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है। एज सच स्टेप्स ही रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, इसको समझने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है, देन यू कैन डू इट, ठीक है। यहाँ तक तो ये बात हो गई थी। अब आप लोग मुझे ये बताएं, कोई बता सकता है कि एवोगैड्रो नंबर बेसिकली होते क्या हैं? हम एवोगैड्रो नंबर क्या है, इनका पर्पस क्या है? किसी को भी नहीं पता? जी, एवोगैड्रो नंबर बेसिकली जो है ना, हमारे पास एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था जिसने ये जो नंबर है ये बताए थे, और इसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू 6.022 × 10⁻23 जो थी उसके अंदर कैलकुलेट की थी, ठीक है। और आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास ये जो कंसेप्ट ऑफ मोल है, बेसिकली द नंबर ऑफ पार्टिकल दैट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एवोगैड्रो नंबर है। बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल ठीक कमेंट किया है। ये किस बच्चे ने किया है? Muhammad Salman Attar, number of atom in 1 mole of substance. Very good. So what is Avogadro number? Basically the number of particles, not atom. एटम जरूरी नहीं है हमारे पास, वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो जो आप देखिए, अगर हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, सब्सटेंस तो हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकती हैं। If I said there is the 1 mole of atom of sodium, so it means there is 6.022 into 10⁻23 atom of sodium present in 1 mole. If there is a molecule, that 1 mole of water, 1 mole of water is a molecule, so it means 1 mole of water have 6.022 10⁻23 molecule, ठीक है। 1 मोल के अंदर इतने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। इसी तरह अगर आइंस की बात करते हैं, कि मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास जैसे आइन है, सोडियम आइंस है, कि सोडियम क्लोराइड के अंदर 1 मोल सोडियम क्लोराइड के अंदर कितने सोडियम आइंस हैं? सो यू टेल देम 6.022 into 10⁻23 आइंस हैं 1 मोल के अंदर, ठीक है। तो देखिए, मोल को वैसे भी कहा जाता है कि इट इज द सीक्रेट यूनिट।
तो मोल क्या है, मोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट बेसिकली मोल्स कंटेन द नंबर ऑफ पार्टिकल कंटेन द एवोगैड्रो नंबर, एंड हाउ यू डिफाइन द एवोगैड्रो नंबर? द नंबर ऑफ पार्टिकल इन वन मोल ऑफ सब्सटेंस। वन मोल की जब भी बात आएगी तो उसके अंदर कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। अगर वन मोल ऑफ हाइड्रोजन कहा है तो एक हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन एटम है, तो उसके अंदर वन मोल के अंदर कितने हाइड्रोजन होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23। अगर मैं वाटर की बात कर रही हूँ, एक मोल है वाटर का, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है वाटर के? 6.022। अगर एक मोल है मेरे पास सोडियम कलराइड का, तो उसके अंदर कितने सोडियम आयंस प्रेजेंट है? 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, सो ये कॉन्सेप्ट था एवोगैड्रो नंबर का, और आज हमने इसकी डेरिवेशन भी दी है। so you have to do this. Okay, so this is all about today's lecture. अगर आपको कोई confusion है, किसी को कुछ समझ नहीं आया, he and she can ask. No question? Okay,